After the discussion of the structure of polynucleotide chain or the structure of DNA, which is a polymer of nucleotides, then we can discuss about the double helical structure of DNA or simply the DNA double helix. Prior to that, just I'm going to add of 2 or 3 points related to what is the discovery behind this DNA double helix. So we'll go to the year of 1869, where the scientist, a Swiss scientist named as Frederick Mischer, he identified DNA as an acidic substance, DNA as an acidic substance, and which is found in nucleus, and hence he named this as nuclein in a nucleus, and he coined it as nuclein, because it is as found inside a nucleus. But it was not that milestone discovery which we are going to talk about. The milestone discovery is given by the two scientists in the year which is 1963 by Watson and Crick. And what they discovered about? They proposed a model. They proposed a model of double helix model for DNA, model for DNA using sorry using one means data produced by two scientists. Let me first write it down for you. Watson and Crick, they proposed the DNA double helix model for DNA using using X-ray diffraction X-ray diffraction data by that I am going to show, which is known as the X-ray diffraction data of Wilkins and Franklin. So X-ray diffraction data by Wilkins and Franklin. They provided the means X-ray diffraction data by using X-ray crystallography, and with that they found that this means X-ray could be diffracted by scattered by the particles. And after finding out this data, these two scientists, known as Watson and Crick, they proposed this double helix DNA model. And what was their hallmark for their proposition? They proposed the base pairing between two strands or the opposite base pairing between two strands of polynucleotide chain. What was the hallmark for their means discovery of this DNA double helix model was the base pairing between two strands of polynucleotide chain, and which we have already discussed about. As we know, in a DNA there are two complementary strands of means DNA, complementary strands of polynucleotide chain having different direction like 5 prime to 3 prime, and the opposite one is complementary one, which is 3 prime to 5 prime, which I am going to just give you a data about it, this one. Okay, so this is the figure which we are talking about, and this is nothing but which is DNA double helix structure. And DNA double helix structure has, that means what was the hallmark for the proposition given by these two scientists, Watson and Crick? That is the base pairing between this two polynucleotide chain. You can look at here. It is one chain and another one is another chain. And if you will talk about the strand, 5 prime to 3 prime, one strand, and another strand lies as 3 prime to 5 prime. ओके, तो इसका इसका ये मतलब है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक एक, यहाँ पे एक एक जो है मीन्स न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड हमें पता है, अच्छे से हम लोग डिस्कस किए हैं कि एक नाइट्रोजनस बेस होगा, फिर एक पेंटोस शुगर होगा और एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, इस साइड पे ए है और टी है,
हमें पता है ए जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है, प्यूरिन है। प्यूरिन कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड कर रहा है pyrimidine के साथ। सिमिलरली यहाँ पे फिर एक प्यूरिन है, एक pyrimidine है। इसी तरीके से मैं ये भी बताया था कि ये जो प्यूरिन और pyrimidine के बीच में अगर ध्यान दें तो दे आर बॉन्डेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर हम ए और टी के हिसाब से हम जैसे मतलब कोड के हिसाब से बात की थी, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड। और यहाँ पे जो चारों जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं, है ना, चारों जो डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन, थायमिन, साइटोसिन, इनके जो मीन्स जो कंपोजिशन है एक हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, वो एक्चुअली प्रपोज किया गया था। द कंपोजिशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, द कंपोजिशन ऑफ एटीजीसी इन डीएस डीएनए, डीएस डीएनए कुछ नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो कि है एक रूल के तहत दिया गया है और जो कि मतलब हर जगह पे लागू होता है, बाय एरविन चेरगैफ। और उनका जो रूल होता है वो होता है चेरगैफ रूल। और चेरगैफ रूल कहता क्या है? चेरगैफ रूल यही बोलता है कि जो ए और टी का रेशियो होगा, द रेशियो बिटवीन एडेनाइन एंड थाइमिन, which will be equal to the ratio between guanine and cytosine, and these all are equal to nothing but 1. This is known as the Chargaff rule. Once again I am telling you, that is ratio between adenine, thymine, guanine, cytosine are constants, and which is equal to 1. Constant ratio between A, T, G, C, and this is known as the Chargaff rule. तो ये वाला भी यहाँ पे जो प्रोपोज किया गया। एंड इसी बेस पेयरिंग से क्या यूनिक प्रॉपर्टी हमारे जो न्यूक्लियोटाइड चेन में मिलता है, यूनिकनेस ऑफ दिस बेस पेयरिंग, व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ बेस पेयरिंग, व्हिच इज दे हैव डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। दे आर हैविंग 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो एक स्ट्रैंड है, हैज 3 प्राइम टू 5 प्राइम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब ये हम तो अभी इनिशियल डिस्कशन में है, अब आने वाले जो डिस्कशन में देखेंगे तो इसमें ये बात हमें पता चलेगी कि जो एक अगर कोई मान लो कोई 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड का हम लोग जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देख लें, इफ वी कैन नो अबाउट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड, वी कैन गेस और वी कैन प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ another strand. And how is that possible? It is nothing means very difficult. It is as we know, एक प्यूरिन है ना, जैसे मानो कोई ए टी जी सी सी जी टी ए सी जी ऐसे कुछ है, तो मानो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड का है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। व्हाट डिड आई से? एक प्यूरिन जो कि एडिनाइन है, वो मीन्स बॉन्ड होगा थायमिन के साथ, तो यहाँ पे ए की जगह पे टी की जगह पे यहाँ पे ए सी जी, है ना, जी सी ए टी जी सी। तो अगर एक स्ट्रैंड को हम लोग बात मतलब पता कर सकते हैं, तो दूसरा स्ट्रैंड भी पता चल जा सकता है। और आने वाले जो हमारे डिस्कशन है, इन द फर्दर डिस्कशन व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन में हमें ये बात पता चलेगी कि अगर एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम का, अगर पेरेंटल होगा तो इट्स वेरी सिंपल, जो उसका डॉटर स्ट्रैंड होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम में होगा। एंड ये जो डॉटर स्ट्रैंड का सीक्वेंस हम पेरेंटल स्ट्रैंड के सीक्वेंस से आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। सो इट इज वेरी मीन्स important to know about the complementarity of these two strands, but this is not our all discussion. जस्ट मैं यहाँ पे 2 और मिनट लूंगा टू टेल अबाउट मीन्स
whether any only one type of DNA helical structure is present? No. The answer is no. And with this, I'm going to just introduce about the different forms of DNA. Okay. So different forms of DNA एक नॉर्मल सा छोटा सा डिस्कशन रहेगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए में ये एनसीईआरटी का पार्ट है नहीं बट कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानने से वो आगे के फर्दर फ्यूचर के लिए काम आ सकता है. That's why if I am going to tell you about the three forms of DNA, one is A form, then B form, and the last one is Z form. अब यहाँ पे डिफरेंस तो मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा बट स्टिल जस्ट एक छोटा सा डिस्कशन रहेगा. अब ध्यान दिया जाएगा कि हर एक जगह पे ये हेलिकल स्ट्रक्चर है. अच्छा एक नॉर्मल हेलिकल का मतलब क्या होगा? इट इज हैविंग हेलिक्स हेलिक्स टर्न. ओके वी डिस्कस अबाउट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बट बट ये तो इतना भी ऐसे तो नहीं होता बट स्टिल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर हम लोग काफी ज्यादा देखते आ रहे हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं बी फॉर्म ऑफ डीएनए और यही फॉर्म ही सबसे ज्यादा मीन्स पॉपुलर होता है मतलब सबसे ज्यादा पाया जाता है. ए फॉर्म भी दोनों यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों राइट हैंडेड हेलिक्स है. राइट हैंड हेलिक्स ए फॉर्म एंड बी फॉर्म पर जो जेड फॉर्म है ये थोड़ा सा अलग होता है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स. अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो बी फॉर्म है. हम लोग बी फॉर्म के बारे में बात करेंगे और जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे अगर कोई देखेगा ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे मतलब जो कोई मानो जैसे कोई टनल है टनल के चारों तरफ कोई एक हेलिकल स्ट्रक्चर रहेगा वही डीएनए ही होता है. और अभी डीएनए डबल हेलिक्स का थोड़ा सा अभी हम लोग जो फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो फीचर्स के बारे में बात करने के लिए मैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा the structure, the DNA structure or the right-handed double helical structure of double stranded DNA एंड इसको हम लोग कुछ नहीं बी डीएनए बोलेंगे और ये बी डीएनए का जो सेलिएंट फीचर्स रहेगा है ना तो उसको हम एक एक करके जानेंगे जो कि एक एनसीईआरटी का पार्ट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए ये बार बार डिस्कस हो चुका है. डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट हैंडेड हेलिक्स होता है. अब ये जो इनके फीचर्स हैं इनको हम एक एक करके जानेंगे. हमें पहले से ही पता है इनका जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है दे हैव मेड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जहां पे हैविंग अ बैकबोन जो कि मैं कल से स्टार्टिंग से पहले से बता रहा हूँ. बैकबोन किसका होता है? सुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है. सुगर फॉस्फेट बैकबोन रिंग अ बैकबोन ऑफ सुगर फॉस्फेट एंड जो बेस होते हैं नाइट्रोजनस बेस होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस प्रोजेक्टेड इनसाइड. इसका मतलब क्या है? अगर मानो ये जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है ना तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन तो एक बैकबोन प्रोवाइड कर रहा है और जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं और उनके बीच में ही जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. डबल बॉन्ड है तो ए और टी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो गुआनिन और साइटोसिन के बीच में. और वो कौन क्यों ट्रिपल बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड होता है हमें अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता होगा. और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का छोटा सा अगर हिस्सा मैं बताऊंगा तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड उसका जो मीन्स काउंटर पार्ट जिसके वजह से आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगा. अब सेकंड जो रहेगा वो हो जाएगा दैट इज which is known as these two chains have anti-parallel polarity. Anti-parallel polarity. And why we are saying anti-parallel? Because if one is 5' to 3' polarity,
द अदर स्ट्रैंड है अदर 3 prime to 5 prime probability. One is 5 prime to 3 prime probability, another one is 3 prime to 5 prime probability. The third salient feature of this uh, double helix DNA is the bases जो कि इनसाइड प्रोजेक्टेड होते हैं इन टू स्ट्रैंड पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि हम लोग पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ए मतलब कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना जो कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक ओवरऑल बताऊंगा ए हैज टू ये डबल स्ट्राइक का मतलब आपको पता होना चाहिए कि डबल स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड ऑपोजिट स्ट्रैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ ऑपोजिट स्ट्रैंड जो कि ऑपोजिट पोलरिटी के साथ है दूसरा कौन सा है जी एज थ्री मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे टू एच बॉन्ड यहाँ पे थ्री एच बॉन्ड ओके एंड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोग बात कर सकते हैं प्यूरिन किसके साथ मीन्स बॉन्डिंग होगा प्यूरिन हैज बॉन्डिंग विथ pyrimidine प्यूरिन बॉन्डिंग विथ pyrimidine ठीक है अब ये हो गया अब ये दोनों का जो बॉन्डिंग की वजह से जो मीन्स सभी बेस पेयर का जो डिस्टेंस होता है ना जो स्ट्रैंड्स का जो मीन्स सॉरी मतलब जो दो स्ट्रैंड का डिस्टेंस होता है विथ इसके इसी बॉन्डिंग की वजह से दे मेंटेन यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स okay always purine bonds get bond with the pyrimidine the fourth salient feature is the two chains are called in right hand fashion two chains are called in because we are talking about the bDNA right hand fashion ठीक है let me write it down for you this is the right hand fashion है ना और यहाँ पे जो कुछ डिस्कशन रहेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमेशा याद रखना है अच्छा और एक चीज जो कि आपकी एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा जो जितना जो ज्यादा मीन्स ग्रुपिंग जैसा होता है ना ज्यादा मीन्स गैप जैसा रहता है उसको हम लोग मेजर ग्रुप बोलते हैं इज नोन एज मेजर ग्रुप एंड जो थोड़ा छोटा वाला जो ग्रुप रहता है ना स्पेस रहता है ना उसको हम बोलते हैं माइनर ग्रुप अब ये जो मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप एक मिला के एक बनते हैं ये इसको हम लोग बोला जाएगा है ना इसको हम लोग बोलेंगे एक मीन्स पिच दिस इज नोन एज द पिच ऑफ डीएनए और द टर्न ऑफ डीएनए है ना और ये एक पिच का जो मीन्स लेंथ होता है दैट इज 3.4 नैनोमीटर अब ये 3.4 नैनोमीटर का पिच में दे हैव 10 बेस पेयर्स कितने बेस पेयर्स दे हैव 10 बेस पेयर्स एंड अगर ये 3.4 नैनोमीटर का लेंथ है तो ईच बेस पेयर के डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसलिए ये हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ so it's very simple actually two chains are called in writing fashion and the pitch of helix is 3.4 nanometer नैनोमीटर हमें पता है 3.4 इंटू 10 - 9 मीटर ये कितना ज्यादा छोटा हो सकता है ईच पिच है और ईच टर्न हैज 10 base pairs एंड डिस्टेंस बिटवीन ईच बेस पेयर क्योंकि हम डिवाइडेड बाय 10 कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन ईच बीपी इज 0.34 नैनोमीटर ओके और यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाएगा दो स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस है जो कि मैं यहाँ इसी पॉइंट पे बोला हुआ था वो है 2 नैनोमीटर दैट इज 2 नैनोमीटर और अगर टनल के हिसाब से देखेंगे तो उनका डायमीटर हो जाएगा 2 नैनोमीटर
अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है फॉर द सैलिएंट फीचर और द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इज एक जो प्लेन होता है, मतलब मानो एक ये मीन्स पेयर है, बेस पेयर है ना। ये दूसरा बेस पेयर का प्लेन है। प्लेन समझ में आ रहा है ना? एक स्टैक होगा, एक प्लेन। अगर कोई पेपर को हम एक करके ऊपर ऊपर रखें तो एक एक प्लेन होगा। तो मानो अगर एक जो पेयरिंग है प्यूरिन और pyrimidine के बीच में, अगर वो प्लेन जैसे रहेंगे तो उनका एक बेस पेयर का स्टैक दूसरे बेस पेयर के ऊपर रहेगा। एंड ये हमें हमारे जो डीएनए को और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो एक सिंपल तरीके से मैं अगर बताऊं तो प्लेन ऑफ one base pair stacks over other in the double helix structure on the double helix, and with addition to H bond or hydrogen bonding, this planar stability gives more means stability to helical structure. Planar stability provides more stability to helical structure. Okay. So with this, this is about the salient features of DNA. एंड इसके बारे में हम लोग ये बात किए कि जो मीन्स डिफरेंट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंटरिटी क्या होता है, 5' टू 3' टू दूसरा 3' टू 5' विच इज एंटीपोलर इन नेचर। एंड ये सभी में प्यूरिन और pyrimidine के बीच में ही जो बेस पेयरिंग होगा। एंड इसी बेस पेयरिंग से क्या फायदा होता है, दे मेंटेन अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस which is 2 nanometer I told you here, and the pitch of DNA, जो pitch of जो double helix is 3.4 nanometer length, and each base pair has 0.34 nanometer of distance। इसी तरीके से हम अगर बात करेंगे तो फिर ये चीज हमें और अच्छे से पता चलेगा कि ये तो रह गया स्ट्रक्चर के बारे में। बट इसके बाद जो फ्रांसिस क्रिक क्रिक के थे, है ना, वॉटसन एंड क्रिक में जो फ्रांसिस क्रिक करके थे, है ना, ये एक अलग से नोट रखेंगे। इस फ्रांसिस क्रिक जो बताया कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डीएनए। डीएनए से होता क्या? डीएनए तो ऐसा नहीं है कि बस डीएनए स्ट्रक्चर है बस रह गया। डीएनए एक स्ट्रक्चर है, वो आगे जाके प्रोटीन कोडिंग और हम लोग सॉरी प्रोटीन का एक्सप्रेशन के लिए काम आएगा, है ना। कुछ भी नो अबाउट द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड ऑल। तो उनका कहना था कि इन द केस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ही proposed one very important thing which is known as central dogma. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जस्ट मैं बहुत ब्रीफ तरीके से इसके बारे में बात कर रहा हूँ और इसी लेसन के साथ मैं ऐड कर दे रहा हूँ। बट कहने के लिए सेंट्रल डोगमा एक अपने में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ना। और सेंट्रल डोगमा क्या होता है? इसमें बताया जाता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एक टिपिकल मीन्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, विच डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। ओके। अब ये सेंट्रल डॉगमा को मैं एक तरीके से यहाँ पे बताऊं तो वो हो जाएगा डीएनए पर ऐसा वो नहीं होता कि बस डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू आरएनए बन गया। रादर डीएनए अपना रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तो और अगेन डीएनए ही बनेगा। एंड डीएनए जैसे बनेगा देन ये अपना एक ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करेगा, जो कि इंट्रोडक्शन में बता चुका था। ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइड करेगा, ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करेगा, एक मैसेजिंग मॉलिक्यूल बनाएगा जो कि हम लोग कहते हैं मैसेंजर आरएनए। दिस मैसेंजर आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, और सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि डीएनए से एक्सप्रेशन हो रहा है, जो कि होता है विद द प्रोसेस ट्रांसलेशन विच इज टू फॉर्म प्रोटीन। ओके। सो दिस इज द सेंट्रल डोगमा। एक मैं बहुत ही ब्रीफ तरीके से बताया था कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। But is it true for all individuals, all organisms? But no। एक और एक नोट लिखेंगे या यहाँ पे आपको एक सजेशन दूंगा कि जब हम लोग किसी
वायरल जो आरएनए कंटेनिंग वायरस के बारे में बात करते हैं, है ना, जिनका हेरिडिटरी मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल, जिनका वायरस हैविंग आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, उसमें थोड़ी ना मतलब डीएनए का कोई रोल है। उनका सेंट्रल डॉगमा क्या होगा? उनमें एक अलग तरीके से रहता है। उनमें क्या होगा? पहले आरएनए से डीएनए, एंड इसमें वो जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कहने के लिए तो वो तो अभी सिंपली आरएनए टू प्रोटीन हो सकता था, बट इतना सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स थिंग है ना। और उसके बाद अगेन द डोगमा विल कंटिन्यू, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन which is will form mRNA, and then translation which form protein. Okay, so with this it is about the flow of information, and this is the central dogma. अब आने वाला जो लेसन रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो मीन्स हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, और ये जो दो बेस पेयर के बीच में जो 0.34 नैनोमीटर का जो डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है एक तो पूरा ओवरऑल देखेंगे बेस पेयर के हिसाब से, तो वो तो पूरा कंटिन्यूस बड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा। तो उसका पैकेजिंग हमारे एक न्यूक्लियस में कैसे होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेसन।